Welcome to the channel Easy Trick for the computer science student and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that topic is the part number 4 with the extension part already available on this channel under the local area network and under the playlist of the computer networks. So the playlist link will be available into the description box. So those students who don't see the previous part, kindly see the previous part and enter into this new part. And it's my humble request to all of you when you see the videos and if you have any type of query or question, kindly post your question into the comment box. Reply will be given definitely within the 24 hours, surely. So in this tutorial, we will learn about the part of the continuity of the CSMA-CD with the details of contention. Contention is the major part of the CSMA-CD because at every parallel device, when they fix all the things under the privilege of sharing environment, on that time the system is busy, idle, already, and or in the waiting state. And that time the contention is happened on that time. So firstly we will discuss about what is contention and why it is important. Contention's simple meaning is that disagreement of the things. That is the simple means when your opinion or something that you say is true. It depends on your behavior. It's the simple meaning. But when we enter into the computer network, the meaning is totally different than what is the contention meaning. So in the computer network, contention part is important aspect at every LAN, MAN or WAN. So contention means contention is a media access method that is used to share a broadcast medium. And in contention, any computer in the network can transmit data at any time. That is the principle dependent on first come, first serve. And this systems break down when two computers attempt to transmit at the same time. So the condition is what? Again, I will repeat all things. But the contention in computer network is what? Not as the disagreement. Disagreement is the English word, but contention in the computer uh, language or in the CSMACD, that is totally different. That is the different part because it has a very similar values with the CSMA-CD naturable things that he will shift into the next part or he will not shift into the next part. So the contention period is different because a contention slot is the minimum time a host must transmit such that it can be sure that no other host packets will be delivered on that time or not transmit on that time. That is the assurance part. And for the local area network, when you will use the CSMA-CD, the contention period must be twice the propagation delay that we already discussed about. The propagation delay is the 2 times of the actual time. So, is the question of the MCQ is the CSMA-CD having the contention method? Definitely it having the contention method and also the contention protocol because in the networking we use the CSMA-CD procedure that is very simple and implement but do not have deterministic transmission characteristics under the privilege of the CSMA-CD. So CSMA-CD having the contention method is the modification of the pure sense multiple access method, pure sense carrier access. CSMA means carriers access or carrier sense multiple access method and इसी मेथड में हम यूज करते हैं CSMA की परफॉर्मेंस देखी जाती है कि टर्मिनेटिंग क्यों हो रही है ट्रांसमिशन एज सुन एज कोलिजन इज डिटेक्टेड सो कंटेंशन तब आता है जब कोलिजन कोई डिटेक्ट हो जाता है सो कंटेंशन रेशियो जो होती है
जो शेयरिंग के टाइम पे इंटरनेट कनेक्शन आप यूज करते हो, बैंडविड्थ पे भी डिपेंड करती है कि अगर बैंडविड्थ कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली स्लो भी हो सकता है सिग्नल और आपका काम नहीं भी हो सकता। सो ऑन दैट टाइम ऑल अदर स्टेशंस आर अवेयरनेस होनी चाहिए कि ट्रांसमिशन चल रही है और कोई कोलिजन नहीं है। और व्हेन द सेंडिंग स्टेशन हैज टू कंटिन्यू ट्रांसमिशन फॉर द ड्यूरेशन, अगर उसे पता है कि इशू आना है तो वो राउंड ट्रिप में एंटर कर गई है तो वर्स्ट केस में एंटर कर जाएगी। So this is very closely scenario under the round robin algorithm because the contention having the period of the first come first serve. This is very closely related to the propagation speed because the propagation speed is 2 times higher than the actual transmitting time. So on that time जो Ethernet working आपकी लगेगी 2500 meters of coaxial cable भी लग सकती है, standard rate है इसका क्योंकि ये 10 megabits per second Ethernet speed से बहुत ज़्यादा चलती है और round trip time इसका होगा 50 microseconds का। आपने देख लिया कि कोएक्सियल और 50 माइक्रोसेकंड्स का ट्रिप टाइम होगा। सो प्रीवियस डिस्कशन पे हमने एक मिनिमम फ्रेम साइज इम्प्लीकेशन कर लिया है कि हमारी कोएक्सियल कितनी होगी और कितना पार्ट होगा। मींस 10 Mbps, 1 bit takes the 100 nanoseconds to transmit. So in order to occupy the channel of the 50 microseconds is the one frame जो बनेगा at least minimum should be the 500 bits का होना चाहिए क्योंकि आपका अगर 10 मेगाबिट्स पर सेकंड का इथरनेट स्पीड बाय चल रहा है तो उसकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली मैच करेगी विद द 50 माइक्रोसेकंड्स के साथ एंड ऑटोमेटिकली हमारी 500 बिट्स का एक सिनेरियो बनेगा। सो ये सेफ्टी मार्जिन होता है हमारा मिनिमम फ्रेम साइज कि आपको एटलीस्ट जो है वो 512 बिट्स लेनी ही पड़ेंगी जिसको IEEE स्टैंडर्ड 802.3 खुद भी एनहांस करता है कि आपको एटलीस्ट प्री प्रोसेसर बनाना है, हार्डवेयर कंट्रोलिंग करनी है, कुछ भी करना है तो 64 बाइट्स तब लोगे जब आपके पास डेटा 500 बिट्स वन फ्रेम का सोचोगे लेना है तो मार्जिन राउंड में उसके पास 512 बिट्स होने ही चाहिए। सो ये है हमारा मिनिमम फ्रेम साइज के अकॉर्डिंग टू कैसे बना है। सो पहले जो 8 बिट्स होते हैं 7 ऑक्टेट्स ऑटोमेटिकली प्रीएम्बल में चले गए हैं और हमारा जो क्योंकि ऑल्टरनेट पार्ट है या तो 1 आना है सिंक्रोनाइजेशन में या तो 0 आना है, या तो ट्रांसमिशन हो रही होगी या फिर ट्रांसमिशन नहीं हो रही होगी क्योंकि फिजिकल लेयर यहाँ पे वर्किंग कर रही होगी तो ऑटोमेटिकली आपका पार्ट यहाँ पे डिफरेंट में चला जाएगा। आगे है SFD। SFD जो होता है ना बेसिकली वो देता है हमें 1 बाइट। ये वैल्यू जो है मार्क होती है एंड ऑफ द प्रीएम्बल पे भी मार्क होती है, स्टार्टिंग ऑफ द प्रीएम्बल पे भी मार्क होती है। सो विच इज द फर्स्ट फील्ड ऑफ द ईथरनेट पैकेट, जो पैकेट डिलीवर होना है उसकी स्टार्टिंग एंड इट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द ईथरनेट फ्रेम, ये बिगिनिंग बताएगा। SFD स्टार्ट ऑफ द फ्रेम डेलीमीटर is the starting of the significant of the beginning of the Ethernet frame. And after that DA is the destination address। जो destination address भी होगा वो भी एटलीस्ट आपका 6 बिट्स का होना चाहिए और जो आपका सोर्स का एड्रेस है वो भी यही मेंशन किया जाएगा साथ में। टोटल लेंथ जो ट्रांसमिशन में जाएगी वो है 2 और जो हमारी आगे की तरफ एंट्री करेगा कि अब डेटा जो डिलीवर होना है वो कैसे होगा वो डिपेंड करता है हमारा लेंथ कितनी है टोटल मैसेज की LLC में। सो LLC जो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है पार्ट के अंदर, लिमिटेड लाइबिलिटी किसी चीज की नहीं है, लिमिटेड liability of the LLC data is the different। LLC जो है वो डेटा लिंक लेयर का पार्ट होता है ना, तो ये मिनिमम लाइबिलिटी नहीं कहना, लाइबिलिटी नहीं है, दिस इज द नॉट द लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी नहीं जा रही डाटा के ऊपर, जा रहा है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्योंकि इसका अपना पार्ट होता है डेटा लिंक लेयर का। सो लॉजिकल लिंक कंट्रोल डेटा जो है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लेयर जो उसके ऊपर वाली लेयर होती है 7 लेयर्स जो है ना OSI की, सो डेटा लिंक लेयर जो होती है उसका काम है। सो LLC जो है सब लेयर है, एक्ट करती है इंटरफेस बिटवीन द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर एंड द नेटवर्क लेयर के बीच में, ये वो काम भी करती है और डेटा भी डिलीवर करती है। और बाकी डेटा जो हमारा मिनिमम टू मैक्सिमम चल सकता है वो है 46 टू 1500 ऑक्टेट्स एंड ग्रेटर देन 0 आएगा अगर आपका डेटा जो है इसमें एंटर कर जाएगा। तो उसके बाद इसके कन्वर्जन में फ्रेम में क्या होना चाहिए आपने देख लिया ना, स्टार्टिंग जो प्रियम्बल है
वो सब में आनी है। फिर स्टार्टिंग फ्रेम डेलिमीटर को हम पाइट देंगे, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस को, फिर सोर्स को, फिर लेंथ और टोटल जितना मैसेज है वो डिलीवर होगा। अब उसके बाद बात कर रहे हैं हम पीएडी की। पीएडी जो होता है ना नेटवर्क के अंदर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर भी हमारे पास वैल्यूज होती है कि नहीं होती, वो हम अभी देखते हैं। पीएडी में जो पैकेट असेंबलर और डिसअसेंबलर, मतलब पैकेट या तो असेंबल हो रहा है या डिसअसेंबल हो रहा है डिवाइस के थ्रू, या तो आगे जा रहा है और या फिर ट्रांसमिशन रुक गई है, और रूल चलेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। एड्रेसेस यूनिक होते हैं हमेशा। यूनिक क्यों होते हैं? क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा साइकिल रिडंडेंसी चेक भी इसी में चल रहा होता है, और वो 32 बिट का है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, क्योंकि इसने जब भी राउंड लेना है तो ऑटोमेटिकली राउंड लेगी जब इधर से इधर की तरफ, तो क्योंकि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम भी साथ में वर्क कर रहा है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो फ्रेम्स आते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीवरी में एंटर होते जाएंगे। डेटा हमारा यहाँ है, सोर्स एड्रेस देख लिया आपने, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस सबके साथ जुड़ा हुआ है, स्टार्टिंग भी बताई गई है यहाँ से हो रही है, तो जो डिलीवर हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में वेल एंड गुड, नहीं होगा तो राउंड ऑटोमेटिकली वापस आएगा। और ये एड्रेसेस हमेशा ही, एंड ऑल अदर टाइम मीन्स कि जो प्रोपेगेशन टाइम अगर डिले बढ़ता जा रहा है तो आपको वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। सेकेंड फॉर्मूला है कि इफ नो कोलिजन तो क्या होगा, टोटल ट्रांसमिशन प्लस टोटल प्रोपेगेशन टाइम, और अगर कोलिजन आ गया है तो कितनी बार राउंड साइकिल में गया है वो भी टाइम ऐड होगा इन द कंटेंशन पीरियड। और हम इसको अभी आगे जाके फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस भी करेंगे विद द डिफरेंट पार्ट। सो सिंपल फॉर्मूला होता है ट्रांसमिशन टाइम डिवाइडेड बाय द ट्रांसमिशन टाइम प्लस ऑल अदर जितना लग रहा है, इसमें प्रोपेगेशन अगर कोलिजन नहीं है तो कंटेंशन टाइम पीरियड का टाइम भी आपको ऐड करवाना पड़ेगा। और क्या क्या लग सकता है इसमें, एक 10 थिन कोएक्सियल केबल भी लग सकती है, जो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड का मीडियम ऑप्शन उसने दिया आपको। उसमें थिक कोएक्सियल भी हो सकती है, 500 मीटर मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ भी हो सकती है, और 250 मतलब 2500 मीटर्स तक भी चल सकती है, क्योंकि रिपीटर्स लगे हुए होते हैं। सेगमेंटेशन जो होती है 100 स्टेशन पे हो सकती है, मतलब 100 स्लॉट्स हो सकती है पर सेगमेंट, और 10 जो है ट्विस्टेड पेयर भी लग सकती है ऑन द 10 मेगाबिट्स पर सेकंड। और फाइबर ऑप्टिक्स अगर लगानी है तो आपको स्टार टोपोलॉजी लगानी पड़ेगी पॉइंट टू पॉइंट, और थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स, तो वो भी आप ले सकते हो। ये ऑप्शंस है कि आप क्या क्या ले सकते हो। वैसे तो कोएक्सियल के साथ हमारा काम चल ही रहा है, 512 मीटर वो चलती है मैक्सिमम, तो वो तो चल ही रही थी, बट अगर कोई और भी पार्ट हो जाए तो उसको भी हम देख सकते हैं। सो अनशील्डेड ट्रस्टेड वेयर भी होती है और शील्डेड भी होती है, इसमें हमने अनशील्डेड यूज करनी है क्योंकि टेलीफोन की वायर में वही यूज होती है। पॉइंट टू पॉइंट क्रॉस केबलिंग में अगर फाइबर ऑप्टिक्स में एंटर करे हो तो स्टार टोपोलॉजी आ जाएगी, जिसमें कि स्टेशंस कनेक्टेड होने हैं स्विच के साथ, कोशिश करो स्विच के साथ ही करो, क्योंकि हब वन लाइन रिपीट करती है फिजिकल स्टार लॉजिकल बस कोलिजन पॉसिबल भी कर देती है, क्योंकि बस लॉजिकली चल रही होगी, तो मैंने आपको लैन के पार्ट में ऑलरेडी समझाया था कि बस टोपोलॉजी क्यों लॉजिकली एंटर होनी है। आप वीडियो चेक कीजिएगा, उसमें बस टोपोलॉजी की बात हुई है राउंड रोबिन में, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। लिंक लिमिटेड जो होना चाहिए 100 मीटर का बनाओ लैन का, और मल्टीपल लेवल की हब्स आपको उसमें फिर लगानी पड़ेंगी अगर आप स्टार यूज कर रहे हो, बट अगर लॉजिकल बस कर रहे हो तब भी स्टार की जरूरत आपको पड़ जाएगी, और रिंग कर रहे हो तो वो भी यूज हो सकती है इसमें। अब ये है कि 2 लेवल हब लगाओगे तो डेफिनेटली 2 हब्स की जगह आपको मल्टीपल हब्स लगानी पड़ेगी। इस हब के साथ ये भी कनेक्टेड है, ये 2 केबल्स जो है वो ट्विस्टेड पेयर भी हो सकती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स भी हो सकती हैं, दोनों में से कोई पार्ट भी आप एनहांसमेंट में उठा सकते हो इस वाले पार्ट पे। तो इस वाले पार्ट पे कोई भी पार्ट उठाया जा सकता है, ये नहीं है कि आपको उठाना नहीं होता, तो कोई पार्ट भी उठा सकते हो। इधर ये अब बता दिया गया कि दोनों केबल्स में से एक ट्विस्टेड पेयर भी हो सकती है, कोएक्सियल भी हो सकती है। ये दो 1 2 एंड 3 लेवल हब लगी हुई है क्योंकि लॉजिकल बनाना है। ये स्टेशन हैं जिसपे ट्रांसमिशन होनी है। एक तो ये हायरार्किकल मॉडल का भी एंटर हो गया बेस, और आपका जो हम ट्री टोपोलॉजी की बात करते हैं वो भी एंट्रेंस हो गई, बट 2 लेवल स्टार टोपोलॉजी हो गई ना। 1 लेवल तो यही हो गया इसका कि इसके साथ एक स्टेशन लगा हुआ है, और सेकंड लेवल ये हो गया इसका जिसमें 2 हब्स अपनी हब के साथ कनेक्टेड है और उसके अपने स्टेशन है नीचे। अब आगे की तरफ देखते हैं। हब में हब लगानी है तो डेफिनेटली इंटरकनेक्शन बना रहे हो तो
मल्टीपल हब्स है, 100 मीटर पे हमने बोला एक लगाओ, तो मल्टीपल हो सकती है, तो उसमें हमें ब्रिज की भी जरूरत हो सकती है, स्विच की भी, राउटर की भी, क्योंकि डेटा किधर से जाना है राउटिंग डिसाइड करेगी। स्विच किस इंटेलिजेंटली किसको देना है डेटा, ब्रिज है कि अगर डिफरेंट लैन प्लेटफॉर्म्स है तो उसको एक ब्रिज इंटरकनेक्ट करेगा। ब्रिज की एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो सिंगल लैन मैन वैन में भी यूज होती है। ब्रिज और राउटर स्विच के साथ कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। ज्यादातर ब्रिज जो होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क पे यूज होते हैं, और जो राउटर्स होते हैं वो लैन और वैन पे भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क इन द ग्लोबल विलेज आपका काम इतना ज्यादा होता है कि इंटरकनेक्शन राउटर की तरफ से होता है। मान लो इंडिया कनेक्टेड है कितनी टाइप से कि आपने यूके जाना है, यूएसए जाना है, अगर मल्टीपल वेज राउटर डिसाइडेड हो करेगा कि आपका वैन एरिया कहाँ से एंटर होगा। फंक्शन ऑफ ए ब्रिज बेसिकली ये होते हैं कि उसने ट्रांसमिशन करनी है फ्रेम्स के बीच में फ्रॉम वन लैन टू अनदर लैन, चाहे उसका लॉजिकल एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट हो, पर ब्रिज का काम ही यही है कि डिफरेंट लैन का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ट्रांसमिशन रोकनी नहीं है, रीट्रांसमिट करना है, हर बार उसको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। अगर कोई डिफरेंट लैन्स भी कनेक्टेड हो चुकी हैं तब भी ब्रिज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो राउंड रॉबिन में भी ब्रिज का होना बहुत कंपलसरी किया गया है। ये हमारी लैन्स है, स्टेशन 1 से लेके स्टेशन 10 तक एक लैन है, और ये दूसरी लैन है, लैन ए एंड लैन बी, और बीच में हमारा ब्रिज वर्क कर रहा है। फ्रेम्स जो चल रहे हैं विद द एड्रेसेस 1 से लेके 10 तक ऊपर, और नीचे 11 से लेके 20 तक। तो फ्रेम 11 से लेके 20 तक है लैन बी में, और यहाँ पे लैन ए में 1 से लेके 10 तक। डिफरेंट लैन चाहे अंदर अपना इन्वायरमेंट कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करे, नो वरीज अबाउट दैट, क्योंकि ब्रिज का काम ही यही है कि अगर आपस में उसने दो लैंस को इंटरकनेक्टेड कर दिया है तो फिर वो एड्रेसेस का रेपिटेशन हो, आपका डेटा लिंक लेयर की फ्रेम्स हो, इंटरनेट के पैकेट रेडियोस हो, कुछ भी हो, डिसाइडेड है कि ब्रिज है, होना चाहिए हमेशा, तो वो वर्क करेगा ही करेगा ऑन द डिफरेंट लैंस। मॉडिफिकेशन कोई नहीं हो सकती बाद में, क्योंकि फॉर्मेट फ्रेम का यही कहता है कि आपके डिजाइन एस्पेक्ट में कोई भी ऐसा कंटेंशन पीरियड नहीं एंटर हो सकता। सोर्स का एड्रेस दो, डेस्टिनेशन का एड्रेस दो, एड्रेस देने हैं तो फिर सब कुछ बताना पड़ेगा कि हम लैन में क्या यूज कर रहे हैं। एडिशनल हेडर कोई नहीं लगता जो वन टाइम लग जाता है। बिटवाइज कॉपी ऑफ द फ्रेम लैन टू अनदर होती है, आइडेंटिकल भी होती है, कि अगर रेपिटेशन आपकी स्टार्ट हो गई, रिप्लाई नहीं आ रहा, तो रिपीट भी करोगे आप। बफरिंग हो जाती है कई बार कि अगर बार बार एक ही कॉपी भेजते जा रहे हो। राउटिंग और एड्रेसिंग इंटेलिजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ब्रिज है तो स्टार टोपोलॉजी है। स्विच यूज करोगे तो और ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस होगा, आप यूज करोगे तब भी वो सेंट्रल नोड जो बन जाएगी, आप ही के सिस्टम तक वो डेटा रिलीज करेगी। एंड इवन द लॉजिकल बस टोपोलॉजी की बात क्यों हुई है, क्योंकि लॉजिकल बस टोपोलॉजी खुद भी वैसा ही काम करती है जैसे कि स्टार कर रही होती है। सो ये हमारा IEEE 802.1D स्टैंडर्ड है ऑन द मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर के पास। सो जिसमें आपका टाइम पीरियड ब्रिज की हेल्प से के बिना भी चलता है, कि अगर ब्रिज नहीं है तो कैसे IEEE स्टैंडर्ड इसको हैंडल करता है, अब बात हम उसकी करेंगे। सो ये बात होगी हमारी ब्रिज प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर की in the next part. So if you have any type of query, kindly comment it to the comment box, and don't worry about the numerical phase. न्यूमेरिकल फेस डेफिनेटली आएगा इसी ही चैनल पे as soon as possible. वन न्यूमेरिकल फॉर द ऑल प्रोपेगेशन डिले, कंटेंशन पीरियड क्या होता है, उससे आप कैसे निकलोगे, कितना बस टाइम एरिया लग रहा है, या कैसे निकलना है उसमें से, एक न्यूमेरिकल इंटरफेस जरूर आपको मिलेगा जब ये थियोरी लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। So if you have any type of query or question, surely comment into the comment box. That it's my humble request. If you really have any asking about any question, kindly comment into the comment box. Reply definitely will be given into within the 24 hours surely. So till then, take care and God bless you.